Hello students, good morning. Students, from today we are going to learn our new chapter, that is chapter number 3, Introduction to Microsoft Office. Up till now we have learned we have learned two chapters, that is chapter number 1 and 2. Both the chapters were based on HTML web designing language. Now from today we are going to start with our new chapter, that is chapter number 3. In this chapter we are going to learn few points like database and database management system, Microsoft Access, working with tables, working with queries, working with reports, closing database and existing database. So going with the first point of this chapter, that is database and database management system. So what is a database? Database means what? The database is an organized collection of same data. मतलब एक ही तरीके के डेटा का कलेक्शन है, उसे हम क्या कहते हैं? डेटाबेस. लाइक फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी दिस इज एन ऑनलाइन अटेंडेंस शीट. ओके, योर ऑनलाइन अटेंडेंस शीट. अभी अटेंडेंस शीट में क्या है ना, अभी रोल नंबर की जगह यहाँ पे रोल नंबर है, नेम की जगह नेम है, रोल नंबर के अंदर नंबर्स दिए गए हैं फ्रॉम बिगिनिंग, नेम के अंदर आपके नेम पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज किए हैं. ओके, सो दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज अ ऑर्गेनाइज डेटा. ऐसे डेटा को हम क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनाइज डेटा. सो द डेटाबेस मीन्स व्हाट? इन विच द डेटा इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन. अब ये डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन है ना, इनके कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अ डेटा base. Okay, the collection of same data is known as a database. And what we can do with this database? Whenever we want, we can access the data. Like I want to access the data of 9 Xenia. You can see here there is a sheet. I want to access the data of 9 Xenia. So by clicking on a sheet, I can access the data of 9 Xenia. I want to access the data of 9th Azalea. I am clicking over it and I am accessing the data of 9th Azalea. See, in the same way, if I close this file, okay, now I want to retrieve the data. मुझे वो data ना return चाहिए. Simply what can I do? Just go on a desktop and double click over here, and here your file got open. So in this way, you in database you can retrieve the information and you can access the information whichever you want. This is known as a database. Next, database model. Database model refers to the way of designing a database and storing information in it. मतलब database model क्या? अभी एक्सेल ये क्या है? एक डेटाबेस है और इसके अंदर जो आपने ये डिज़ाइन किया है, सब्जेक्ट कंप्यूटर, देन रोल नंबर, नेम. ओके, सो कौन सी हेडिंग कहाँ पे होनी चाहिए? रोल नंबर नेम के पहले ही आना चाहिए, नेम रोल नंबर के बाद आना चाहिए, डेट नेम के बाद आनी चाहिए, रोल नंबर के अंदर सिर्फ नंबर्स होने चाहिए, नेम के अंदर सिर्फ नाम होने चाहिए. ये सब डेटा आपने क्या किया? डिज़ाइन किया. क्या किया? डिज़ाइन किया. ओके, तो ऐसे टाइप के डेटा को, डेटाबेस मॉडल को हम क्या, डेटा ऐसे वे में डेटा डिज़ाइन करने को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अ डेटाबेस मॉडल. And this data is in a sorted form मतलब ascending to descending order में arrange भी है ये data. So here we can say that Excel sheet is a database in which all data in Excel sheet is a database in which we can from which we can retrieve and access data anytime. retrieve मतलब हम कभी भी डेटा को जो डेटा डिलीट हो गया है, जो भी हो गया है, हम कंट्रोल जेड से उसे रिटर्न लेके आते हैं. मीन्स एनी टाइम वी कैन रिट्रीव द डेटा एंड एनी टाइम इफ द फाइल इज क्लोज वी कैन ओपन इट बाय एक्सेसिंग दैट फाइल. And database model means what? In the way in which we design this table, that which heading should be where, on the heading what should come, all these things uh, we design, that is known as database model. And the database is designed in sorted form. In a sorted form means what? In a ascending or descending order, or descending to ascending order, means it is organized in a particular format. Okay, that is known as database model. डेटाबेस मतलब ये कंप्लीट हो गया. और डेटाबेस मॉडल मतलब इसके अंदर जो भी हम डेटा लिख रहे हैं वो किस फॉर्म में लिख रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एज डिजाइनिंग. नाउ
here this excel sheet I have taken as an example of a database. We are not going to learn database over here. That for that there is a special software of Microsoft, that is Microsoft Access. We are going to learn all these things in that. But before going towards Microsoft Office, आपको कुछ बेसिक पॉइंट जानना जरूरी है, जैसे कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मॉडल क्या है, कंपोनेंट्स क्या है डेटाबेस के, एडवांटेज क्या है डेटाबेस के, उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस देखेंगे. बट फॉर एग्जांपल आई हैव शोन यू डेटा, for example I have shown you excel sheet. Now there are two parts of database model. First one is basic components of database and second one is advantage of database. Basic components of database are, now here डेटाबेस किस लिए यूज होता है ना, फॉर डिजाइनिंग अ टेबल. डेटाबेस के थ्रू हम क्या करते हैं, एक टेबल डिजाइन करते हैं. जैसे एक्सेल में हमने एक टेबल डिजाइन किया ना, ये रोल नंबर नेम और डेट वाला ये एक टेबल हमने डिजाइन किया है. ओके, तो डेटाबेस के अंदर क्या करते हैं ना, एमएस एक्सेस के अंदर भी हमें क्या करना है, टेबल ही डिजाइन करना है. पर जो आप टेबल डिजाइन कर रहे हो या जो आपको टेबल डिजाइन करना है एमएस एक्सेस डेटाबेस के अंदर, ओके, तो वो डेटाबेस के अंदर ना वो उसके अंदर ना उसके कुछ कंपोनेंट्स है टेबल एमएस एक्सेस के अंदर, या आपके जो डेटाबेस है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. लाइक फर्स्ट कंपोनेंट इज अ टेबल. ये जो आपको यहाँ पे कंप्लीट मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, तो ये कंप्लीट क्या है, टेबल इज अ फर्स्ट कंपोनेंट. मतलब एमएस एक्सेस में आप क्या कर सकते हो, आप टेबल बना सकते हो. आफ्टर दैट सेकेंड कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेस और द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस इज फील्ड. फील्ड मतलब क्या, जैसे एक्सेल में हम ये जो हेडिंग्स है इन्हें हम एमएस एक्सेस में क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज अ फील्ड. हम नॉर्मल लैंग्वेज में ये जो रोल नंबर नेम डेट आपको दिख रहा है, वी कॉल देम एज अ हेडिंग्स. जैसे कि हेडिंग 1 हेडिंग 2 एचटीएमएल में सीखे थे ना, उस फॉर्म में. तो दिस वन इज अ हेडिंग, दिस वन इज अ हेडिंग. तो ये सारी क्या है, हेडिंग्स है. अभी ये हेडिंग्स को ना हम एमएस एक्सेस में जब यूज करते हैं या एमएस एक्सेस में जब हम हेडिंग्स लिखते हैं ना, तो उन्हें हेडिंग्स नहीं बोला जाता. हेडिंग्स है और डिफरेंट मीनिंग, दैट इज अ फील्ड. हेडिंग्स को क्या बोलते हैं हम लोग एमएस एक्सेस में, वी कॉल देम एज अ फील्ड. फील्ड मतलब फार्म वाला फील्ड नहीं है यहाँ पे, फील्ड्स मीन्स द हेडिंग. द मीनिंग ऑफ फील्ड ओवर हियर इन डेटाबेस इज हेडिंग. ओके, तो इनको क्या कहा जाता है, the headings are known as a field in MS Access database. So this one is the second component of database. And the third component of database is a record. अभी ये fields के अंदर जो record लिखा जाता है, now this one is a record. तो fields के अंदर जो record लिखा जाता है, जो information लिखी जाती है, that is known as a record. तो fields के अंदर अभी ये fields है ना, roll number name date, इसके अंदर हम रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं, इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं. तो जो इंफॉर्मेशन हम इसके अंदर लिख रहे हैं ना, दैट इज नोन एज अ रिकॉर्ड. सो the component, the basic components of database are, first one is a table, second one is a field and third one is a record. अभी टेबल कौन सा, ये कंप्लीट बन गया एक टेबल. ओके, ये कंप्लीट क्या बन गया, एक टेबल. यू कैन सी द सिलेक्टेड पार्ट. आफ्टर इन टेबल देयर आर fields, in table there are fields, and in fields contain the record, in fields we store the record. Okay, so these are the components of database. Now next point that we are going to learn over here from database model is advantage of database. Total there are 6 advantages of DBMS. Total there are 6 advantages of DBMS. First one is the easy to learn. Second one is the reduced redundancy. Third one is the reduced inconsistency. So third advantages of DBMS, or the third advantages of database is reduced inconsistency. Fourth one is a data sharing facility. Fifth one is a data security, and sixth one is extensive help. So first advantage of DBMS is easy to learn. इजी टू लर्न मतलब क्या कि ये DBMS में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी वर्किंग है वो टेबल के फॉर्म में है. एमएस एक्सेस के अंदर या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम टेबल डिजाइन करते हैं. क्या करते हैं, डिजाइन टेबल. तो
टेबल डिजाइनिंग जो इसके अंदर होती है, इट इज लिटिल बिट इन डिफरेंट फॉर्म। अगर मैं आपको एक बार बता दूंगी कि कैसे DBMS में आपको टेबल डिजाइन करना है, जिस एक बार आपको बता दिया तो आपको वो आ जाएगा। मतलब दिस द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ DBMS is that DBMS means database management system is easy to learn application, easy to learn software, okay, easy to learn app, means it is very easy to learn. Once I will show you it practically and you will understand it that how to create table in a database, but we will proceed further with that point tomorrow. आप सिर्फ यहाँ पे अभी एडवांटेज अच्छे से देख लो। देन नेक्स्ट वन इज रिड्यूस रिडंडेंसी। रिड्यूस रिडंडेंसी मीन्स व्हाट, कि अगर आप एक्सेल शीट में, क्या हो सकता है, एक्सेल शीट में आपको डेटा सॉर्ट करते हो, फिल्टर करते हो, पर अगर आपका डेटा है, जैसे कि यहाँ पे ये डेटा है और ये डेटा का डुप्लीकेट डेटा क्रिएट हो गया, मतलब 23 रोल नंबर दोनों को अप्लाई हो गया, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी कि किसका 23 है। सपोज ये संचेती, ये जो संचेती है इसका भी रोल नंबर क्या है, 23 है, और ये पाटिल जो है इसका भी रोल नंबर 23 है। तो आपको क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई कि किसको कितने मार्क्स है। अगर मार्क्स जब दोगे एग्जाम के तो किसको कितने मार्क्स है, ये आपको क्या होगा, कंफ्यूज होगा कि कौन सा 23 रोल नंबर है, हमने बाय मिस्टेक एक्सेल में टाइप कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डुप्लीकेट डेटा क्रिएट हो रहा है। So what we can do by using database management system in MS Access, MS Access में यूज करने वाले हम लोग database management system। तो हमारा जो ये दूसरा एडवांटेज है ना, डेटा रिडंडेंसी, ये यूज करके क्या होगा कि आप इसके अंदर आप MS Access के अंदर क्या है, आप डुप्लीकेट डेटा आपका रेडी नहीं होता है। योर DBMS अवॉइड्स द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। डुप्लीकेट डेटा जो है उसको क्या करता है, DBMS अवॉइड करता है, मतलब डुप्लीकेट डेटा को लेता नहीं है। So that advantage is known as data redundancy, means avoiding duplication of data is known as data redundancy. Next one is reduce inconsistency. Next type of advantage of DBMS is reduce inconsistency. So what is mean by reduce inconsistency? Reduce inconsistency means what, that suppose two files are containing same data। अभी ये मेरी एक प्रेजेंटेशन की फाइल है, दूसरी प्रेजेंटेशन की फाइल है, दोनों में सेम ही तरीके का डेटा है, तो मैं क्या करूँगी, बार बार वही लिखते बैठूंगी ना, क्या करूँगी, सिंपली कॉपी पेस्ट कर दूंगी या फिर वही फाइल का डेटा आपको बता दूंगी। ऐसे करूँगी तो क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, मेरा टाइम बचेगा, और क्या होगा, मुझे टीचिंग में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली मैं आपको वो टीच कर पाऊंगी। ओके, जो वो वाला वीडियो है वो ही मैं आपको सेंड करूंगी, तो क्या होगा, इस वजह से डेटा इनकंसिस्टेंसी होगी, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ज़्यादा टाइम नहीं देना होगा। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल, ज़्यादा टाइम नहीं देना होगा। सो दैट टाइप ऑफ डेटा इज नोन एज इनकंसिस्टेंसी। रिड्यूस इनकंसिस्टेंसी मीन्स आपका जो डबल आपको जो, जैसे कि अभी यहाँ पे रोल नंबर है, जो 6 अजीलिया में सपोज 30 स्टूडेंट है और 6 जीनिया में भी 30 स्टूडेंट्स है, तो आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे 6 अजीलिया में भी रोल नंबर लिखो, फिर 6 जीनिया में भी रोल नंबर टाइप करो। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ से रोल नंबर को डायरेक्ट 6 जीनिया में एक्सेस कर सकते हो। वो एक्सेल में पॉसिबल नहीं है, but it is possible in MS Access. So just you understand over here, I will show it practically while using MS Access. So it reduce the third advantage of DBMS is avoid inconsistency, मतलब repeat डेटा जो है, अगर वो एक टेबल में है और सेम डेटा सेकेंड टेबल में है तो we can access the data of first table. Then next एडवांटेज ऑफ DBMS इज डेटा शेयरिंग फैसिलिटी। डेटा शेयरिंग फैसिलिटी मतलब क्या, अगर कोई डेटा है आपका स्टोर है, मुझे वो शेयर करना है, आप जैसे ये एक्सेल शीट है या ये प्रेजेंटेशन है, तो मैं वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बाय शेयरिंग द स्क्रीन, बाय शेयरिंग द वीडियो लिंक ऑन यूट्यूब, मैं आपके साथ क्या कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। सेम वे में अगर DBMS में आप कोई डेटा डिज़ाइन करते हो, कोई इंफॉर्मेशन डिज़ाइन करते हो, तो उसको आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो बाय यूजिंग द डेटा शेयरिंग फैसिलिटी। सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ DBMS. Next one is the data security. Data security means what?
अभी आपका मोबाइल है या आपके कोई सिस्टम है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, किसी ने उसके अंदर का डेटा एक्सेस नहीं करना चाहिए, इसलिए आप क्या करते हो, पासवर्ड लगा के रखते हो। सेम वे में ना डीबीएमएस में भी क्या है, आप पासवर्ड का यूज कर सकते हो फॉर प्रोटेक्टिंग योर डेटा, फॉर प्रोटेक्टिंग योर इंफॉर्मेशन। सो दैट्स व्हाई द सेकेंड लास्ट एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस इज डेटा सिक्योरिटी। नाउ द लास्ट एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस इज एक्सटेंसिव हेल्प। अभी आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो ना, अगर आपको कुछ पता नहीं होगा, लाइक ये प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर में आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये आपको हेल्प टैब होता है, यहाँ पे हेल्प दिख रहा है ना, हेल्प टैब होता है। वैसे ही ना डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में या डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर ना आपको एक हेल्प टैब मिलता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट क्लिक ऑन हेल्प टैब और वो हेल्प टैब ओपन हो जाएगा। वॉट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, यू राइट इट ओवर हियर एंड यू कैन फॉरवर्ड इट टू द कंपनी ओनर। ओके, तो एक्सटेंशन हेल्प का भी एक ऑप्शन है हमारे डीबीएमएस में। दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। मतलब आप कोई प्रॉब्लम फेस करे हो, just click on help and you will whatever problem you are facing, type in the search bar and you will get the answer. Okay, so these are the advantages of dbms. Now some points, there are some points which are remaining from this chapter, that is Microsoft Access, working with table, working with queries, working with reports, closing